Good evening, everyone. It is my pleasure today to be hosting a very, very special session. We have a very special guest today with us. Before I speak about our guest, I'd like to thank everyone for joining in today on the India City Walks Festival virtual session on sustainable tourism, supported by Incredible India, Ministry of Tourism, and UNWTO. India City Walks Festival, with its endeavor to go across multiple cities and be able to be existent in this mid-COVID, post-COVID situation where we are fighting with the pandemic, but at the same time living in hope and ensuring that people are able to connect back with their cities and people are able to step out and experience the beauty of their own cities. This festival has been all about locals, by the locals, for the locals, and for people who always create memories and treasure the memories they create on various trips that they take across our beautiful nation. Our country is truly incredible because of the diversity, because of the way things have been present in our country. Talk about anything and everything, and it's there in India. It's a matter of us exploring it with all the beautiful people of our nation. Today's session is also extremely close and special to my heart because at the beginning and at the inception of the India City Walks Festival, I met with this special personality who gave me so many inputs on what and how this festival should be. Her vision was very, very important for us to ensure that the whole theme is based on sustainability and responsible tourism. And keeping that in mind, the festival has been carved out. Our special guest today is Ms. Janak Palta McGilligan, and she is none other than a Padma Shri awardee and a director of Jimmy McGilligan Center for Sustainable Development. Dr. Palta, Dr. McGilligan, is also the co-founder of Jaivik Setu, the National Coordinator for the Solar Food Processing Network, India. The Jimmy McGilligan Center for Sustainable Development has trained more than 40,000 students in sustainable development. She was the director of the Barli Development Institute for Rural Women in Indore from 1985 to 2011, which trained more than 6,000 tribal girls and young women from 500 villages of India in solar cooking, food processing, and installed 500 solar cookers, 14 solar cookers in Indian villages. In her lifetime spent mentoring tribal girls, she understood the impact of good training. She helped SCI staff organize the 6th SCI World Conference 2017, where hundreds of people from around the world collaborated on solar cooking work on grand scale. Dr. McGilligan's innovations expanded to solar tea stall as well. There are millions of tea stalls across India now. Using clean, sustainable solar energy for power to make tea creates enterprise opportunities, reduces air pollution. Dr. McGilligan joined the SCI UN advocacy team to advocate government leaders for environmental friendly, clean, sustainable solutions, including solar cooking. Dr. McGilligan is a leading example of impact one woman can have when one believes in cause and actions taken. I also believe that Dr. McGilligan has had extended experience in tourism on her field trips. And I'm sure there's a lot that she can share with us based on her experience on how a parallel industry like tourism can also focus on something which is sustainable and responsible. मैं चाहूंगी कि मैम आज आप हम सब के साथ based on your experience and based on your guidance हम कैसे करें कि टूरिज्म में भी सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का पूरा ध्यान रखा जाए और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़े. Thank you so much for joining us today, ma'am. Over to you for your introduction and initial thoughts on sustainable tourism. आपका बहुत बहुत थैंक यू. आपने मुझे कहा सस्टेनेबल टूरिज्म पे बात करने के लिए. जैसा आपने बताया मेरा पूरा नाम जनक पल्टा मगिलिगन है. मैं इस टाइम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक गांव सनावदिया में ये मेरा घर है और ये घर ही जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक केवल मेरे पति को समर्पित एक सेंटर है जो कि कोई फंडेड एनजीओ नहीं है. मैं अपनी बात
आज उन्हीं से शुरू करती हूँ। जिमी मगिलिगन वर्ल्ड के बहुत अच्छे माउंटेनियर थे, बहुत अच्छे रेडियो, उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन बनाया था। वो पूरी लाइफ में बड़े सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट थे और हम दोनों बहाई फेथ के फॉलोअर। हमारी शादी, जैसे कि आपने आज सारी संस्थाओं के बारे में बताया, उसी को समर्पित रही। आज जिमी का 78वां जन्मदिन है। वो 10 साल पहले अपना दुनिया से शरीर ज़रूर अलग हो गया उनका, लेकिन उनकी आत्मा मेरे साथ है। और वो हमेशा टूरिज्म की और सस्टेनेबिलिटी की बात हम दोनों ने मिलकर बहुत सीखा। बहुत साल, अभी करीब 30 साल से ज़्यादा, 35-36 साल हो गए हम दोनों को ये सारा सीखते हुए। तो वो कहा करते थे कि जब हम आदिवासी गांव में जाके रहते थे और हमारे साथ कोई भी विदेशी वॉलंटियर, विजिटर होते थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि एक टूरिस्ट के नाते ये नहीं देख सकते हम, जो हम आपके साथ रहकर, लोगों के बीच रहकर जब देखते हैं, उनके साथ एक कनेक्ट है। तो मैं ये बात, जिमी भी बहुत देशों में घूमे हुए थे, मैंने भी अपने जीवन में, मुझे याद नहीं, करीब 35 देशों में है। और टूरिज्म के एंगल से कभी भी नहीं गई, चाहे मतलब अपने बहाई तीर्थ स्थल इजराइल में हैफा में हमारे पवित्र स्थान है, पवित्र समाधियां हैं, लेकिन विश्व के जितने ये देख सकते थे हम लोग, इजिप्ट के पिरामिड देखे, चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखी, और यूरोप में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सब खूब, जहां भी किसी कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया जाता था, हम जाते थे तो हमें लोग ले जाते थे दर्शन कराने के लिए। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो शायद एक गर्व है मुझे इस बात का कि मैंने भारत दर्शन सबसे अच्छा किया है, क्योंकि मेरा काम जीवन का गांव में रहा है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग और टूरिज्म में क्या फर्क है। मैं रोज यहाँ से ट्रैवल कोई कर रहा है काम पे जाने के लिए इंदौर, बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। इसी तरह ट्रैवलिंग भी बिजनेस ट्रैवलिंग होती है, जॉब ट्रैवलिंग होती है, कोई और कोई शादी ब्याह के लिए जाना है, और दुख सुख के लिए जाना, सामाजिक किसी कार्य के लिए जाना है। तो वो हमारी एक इंसानी रिश्तों की को निभाने के लिए हम लोग आमतौर पर जो ट्रैवल करते हैं। ये जो टूरिज्म है, टूरिज्म एक विशेष योजना बनाते हैं कि हमने ये जगह देखने जाएंगे, या ये, और ये टूरिज्म जो है ये अपने आप में बहुत तरह का है। वो भी लोकल भी हो सकता है, आप आसपास पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल पे भी जा सकते हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं, और शाम को वापस आ सकते हैं, या फिर कुछ दिनों का टूर बना के जाते हैं। और बहुत प्रकार का है। जैसे एक हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चरल प्लेसेस देखने का हमें शौक है, देखने जाते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल, जैसे हम बोध गया जाएंगे, दिल्ली में ये बहाई लोटस टेम्पल देखने जाएंगे, या वैष्णो देवी जाएंगे, या चार धाम जाएंगे, या हेमकुंड साहब जाएंगे, या
बड़ी मस्जिद या ताजमहल देखने जाएंगे। तो ये एक वो टूरिज्म है जो आध्यात्मिक है, और दूसरा एक आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, आर्ट और उसको लेके है। दुर्भाग्य ये है कि अभी जैसे टूरिज्म आप लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, मैं इंडस्ट्री शब्द से ही, जैसे शिक्षा को भी आजकल बोलते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री, तो मुझे ये लगता है इंडस्ट्री वर्ड सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब, पहले सस्टेनेबल वर्ड आपको बताना चाहती हूँ क्या है। इसको मैंने रीडिफाइन किया, एक जमाने में लिखा हुआ था, एक ही डेफिनेशन आज तक रही है कि जब हम प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से उपयोग करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें, कि वो हमेशा अनवरत कभी खत्म ना हो। तो मैंने ये क्वेश्चन करना किया 92 के बाद अर्थ समिट, मैंने वहाँ रियो डी जनीरो, वहाँ भी सारे टूरिज्म प्लेसेस देखे, ब्राजील में भी। तो वहां से मैंने आके क्वेश्चन करना शुरू किया, क्या आज हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए? 92 में मैंने, पानी चाहिए उतना है नहीं, हवा नहीं, आकाश की क्या हालत, पृथ्वी की क्या हालत, तो जो भी हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, तो इसमें से कैसे बचाएंगे? तो सस्टेनेबिलिटी की मैंने रीडिफाइन किया। भारत की दो बहुत कॉमन और बहुत प्रचलित दो वाक्य हैं, वो प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। जब ये दोनों होंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। जो हमारी गतिविधि करने से प्राणियों में सद्भावना बढ़ेगी, हमारे रिश्ते इंसानों के साथ, पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ, पृथ्वी के साथ, हर कदम पे, हर प्रकृति की हर 5 तत्वों के साथ, सभी के साथ, जब हम अपने रिश्ते ऐसे सस्टेन करेंगे कि केवल सद्भावना होगी, जिसमें शांति मिलेगी, जिससे प्रेम बढ़ेगा, जो अहिंसा बढ़ाएगा, जो हमारे अंदर लोभ, काम, क्रोध और ये वैर भाव और पूर्वाग्रह बढ़ाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो टूरिज्म एक ऐसा जिससे हमें शांति मिले, वो सारे जो जगहें हैं जो देखने जाते हैं, वो भी एक प्रोडक्ट और मार्केट बन के नहीं रह जाए। वो अगर हमारा इतिहास है तो हमारा इतिहास जिंदा रहे, अगर वो हमारी संस्कृति है तो हमारी संस्कृति जिंदा रहे। और अगर अभी आजकल टूरिज्म का जो एटीट्यूड है हमारा और बिहेवियर है, पहली बात है कि जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बोर हो गए लाइफ से, रोज मैकेनिकल लाइफ है, चलो 4 दिन कहीं घूम आते, तो अपनी एसी गाड़ी लेते हैं, कोई रिजॉर्ट पे बुकिंग करते हैं, और कोई एक आध अच्छी जगह देख ली और मोबाइल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो भी देखने जा रहे हैं उसको देख रहे हैं क्या, उसको आत्मसात कर रहे हैं क्या, उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, वो क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, उससे क्या हुआ, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की क्या। अभी रिसर्च बहुत कमजोर है, गूगल पे भी आप जाएंगे तो आज मैं आपको मेरे क्षेत्र की बात बता रही हूँ, केवल मेरे 20 किलोमीटर में जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक या कोई पुरानी चीजें हैं या खंडर हैं, किसी के बारे में, मेरे आसपास की 4 पहाड़ियां हैं, किसी को ठीक से इनके नाम नहीं लिखे हुए कहीं, तो कुछ ना कुछ यहाँ स्थान रहे होंगे किसी जमाने में। तो अभी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग रिसर्च अच्छी हो, हम लोग जब जाएं तो अपनी, मतलब
उसके खाली पैसे खर्च करके आ जाए, टाइम इससे डिस्कनेक्ट होके वहां जाके आ जाए और कुछ सीख के नहीं आए, कुछ लेसन नहीं देखे, कुछ जिंदगी में यादें ऐसी जो जीवन भर मतलब हमारे अंदर रहे, वो यादें वो सस्टेन करे हमारी लाइफ में मेमोरीज, और वो हमें एक आनंद की अनुभूति हो, एक खुशी हो, एक जिंदगी की ऐसी बात जो जिसकी कहानियां हम अपने बच्चों को, फिर हमारे बच्चे दूसरों को, अरे मेरी दादी वहां गई थी, मेरे नाना जी वहां गए थे, हम एक बार उनके साथ देखने। मुझे आज तक याद है जब हमारे पिताजी, हम सारे चारों बहन, पांच, सबसे छोटी बहन थी, चार चलते फिरते थे, मेरी छोटी बहन को उठाया था मैंने तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, ताजमहल जो पिताजी के साथ देखा था। उस टाइम धर्मशाला में रुके थे, और मुझे आज भी वो बंदर याद है जिन्होंने मेरे पिताजी का जूता उठा के ले गए थे। वो ये बात शायद 1960-61 की होगी ये बात, आज भी मुझे याद है। वो यादें जो मथुरा वृंदावन की हैं, मुझे वो ताजमहल याद है मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि अभी जो हमें अभी कोविड काल है, इसमें बहुत सारी निराशा है, बहुत सारी दुख, पीड़ा, मौतें, इतनी इतनी जिंदगी में, मतलब लोगों को अब 1 साल से ज्यादा हो गया, हम लोग बाहर, टूरिज्म वाली बात तो छोड़ो, वैसे ही मिलना गिलना, सोशल, ब्याह शादी, रिश्ता, जीना मरना। मेरे को अभी कोविड से मैं ठीक हुई तो मैंने यही कहा कि शुक्र है भगवान, आई डिड नॉट डाई विद कोविड। कोई मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाता, इतनी नफरत कोविड के उससे है, और मेरा तो इतिहास लिखा जाता कि वो कोविड से गई। तो मैं ये कहती हूँ कि इतने लाखों लोग हमने खोए हैं, इससे एक लेसन हमें मिलता है कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, हमें जिंदगी को वैल्यू करना चाहिए, और जो हमारे पास धरोहर हैं उनको हम वैल्यू करें। और आने वाले टाइम में अब जो हमारी टूरिज्म है सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसके साथ हेल्थ, हीलिंग और सारी जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे आप मेरे गांव में आएंगे, अब मेरा अगला ख्वाब है कि मैं अपने एरिया में बैलगाड़ी टूरिज्म शुरू करना चाहती हूँ। कि हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है देवगुरड़िया का, भगवान शिव का, और वहां से आते जाएंगे आप तो यहाँ पर ऑर्गेनिक खेत हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे प्रकार के सोलर कुकर हैं, और बहुत सारा एक सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल है जहाँ पर अपना उगा के हम खाते हैं। मैंने पूरा अभी बीमारी में, या पूरे 10वां साल हो गया, बाजार से नमक, तेल, शक्कर, चाय पत्ती के अलावा कुछ खरीद के नहीं खाती हूँ। और मेरी गैस की टंकी 2 साल 5 महीने में बदलती है। और मैं जो अपना जीरो वेस्ट, तो टूरिज्म का सबसे बड़ा इशू जो अभी है वो वेस्ट और डिस्पोजेबल प्लास्टिक, और ये जो है, ये इसने टूरिज्म ने जितना नुकसान किया है, हर आप किसी भी जगह पर मैनेजमेंट नहीं है, ये कचरा मैनेजमेंट किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे ठीक से नहीं है, और इसकी समझ हमें होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिस्ट कैसे बने, कि हम अपनी पानी की स्टील की बोतल, अपना कपड़े का रुमाल और एक ग्लास साथ में लेके चलें, और हम कोशिश करें कि डिस्पोजेबल में नहीं खाएं। तो ये अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, अभी ऐसे भी हमारे साथी रहे हैं जो नेपाल की पहाड़ियों में फोल्डेबल सोलर कुकर साथ में लेके गए हैं, और रास्ते में अपना कुछ भी वहां से लेके उबाल के, चावल उबाल के खा लेते, सब्जियां उबाल के खा लेते। तो एक बैलगाड़ी यात्रा से मेरे दिमाग में ये बात है कि लोगों ने ट्रैक्टर के कारण बछड़े, जैसे लड़की को भ्रूण हत्या कर देते थे लोग, यहाँ बछड़े को पैदा होते ही माँ से अलग करते हैं, बछड़ा अपने आप मर जाता है, बछड़ों की संख्या कम होगी। तो बैलगाड़ी भगवान शिव की सवारी है, बैल।
शिव की पूजा करते हैं पर बैल को हमने खत्म कर दिया है। तो बैलगाड़ी से इको फ्रेंडली टूरिज्म होगा, डीजल नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं करेंगे। हमारे अभी ताजमहल को लेके कितने बड़े प्रश्न उठते हैं कि वो स्मोकी हो गया है या वहां पर बहुत पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन को बचाने के लिए हम ये करें, और ईश्वर के प्रेम के लिए हम लोग ये करें। और नदियां नदियां हमारे जो तालाब हैं उनको कैसे पवित्र रखें। अभी इतना बड़ा सिंहस्थ यहाँ हुआ, उसमें पानी नहीं था, इंदौर से नर्मदा से पानी लेके गए, पंप करके पानी। तो ये सस्टेनेबल, वो शिप्रा नदी का वो स्नान नहीं है। तो हमारा टूरिज्म एक गए और जाके आ गए वो नहीं है। जब तक वो भावना, वो आत्मा का कनेक्ट जब तक नहीं होता, तब तक ये नहीं होता। और जब हम गांव में ट्रेवल करते हैं, लोगों की संस्कृति का ध्यान रखें, उनकी इज्जत करें, अपना कई बार भोंडापन, अपना ड्रिंक करके मतलब अपना शेक ही मारना, ये सब अपने बिहेवियर, हम कल्चरल शॉक नहीं दे लोगों को। कई बार लोग कहते हैं हम जाते हैं तो हमें कल्चरल शॉक मिलते हैं। नहीं, हम ट्रेवल करने जाते हैं तो हम कितने कल्चरल शॉक्स देते हैं कई बार लोगों को। तो मुझे लगता है कि मेरी सस्टेनेबिलिटी की यही परिभाषा है कि हम हर जगह, हर इंसान, हर प्राणी से अपने रिश्ते सद्भावना से सस्टेन करें, और वो सतत चलते रहें, वो स्थान भी सतत रहें, और जो लोग जाते आते रहे हमेशा, वो जगहें भी उतनी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। अभी रूरल टूरिज्म की ज्यादा अभी लोगों को पता नहीं है। मेले वेले हैं जैसे कुछ, जैसे राजस्थान में एक, या गुजरात के कुछ भाग में रिलीजियस टूरिज्म फिर भी कहीं कहीं है, पर इको टूरिज्म और ये सस्टेनेबल टूरिज्म और एनवायरमेंटल लर्निंग, हेल्थ एंड हीलिंग के साथ जुड़ी हुई जब टूरिज्म होगी तो वो सस्टेनेबल होगी। ये मार्केट और प्रोडक्ट बन के नहीं रह जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज थिंग्स मैम। मैं एक थोड़ा सा सम अप करना चाहूंगी। जब आपने हमें इतनी खूबसूरत चीजें बोली, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आज आपने हमारे साथ शेयर की, और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन चीजों को जो आज आपने हमारे साथ शेयर की, उसे कैसे हम अपने टूरिज्म में, अपनी जर्नीज में, अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड करें। प्राणियों के साथ सद्भावना, इतिहास को जिंदा रखना, संस्कृति को जिंदा रखना, रिश्ते बनाना, रिसर्च करना, अच्छे से अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, हेल्थ, हीलिंग, नेचुरल चीजों के साथ उसका उनकी यूजेज करना, जीरो वेस्ट पे ध्यान देना, डिस्पोजेबल प्लास्टिक को कम करना, वेस्ट डिस्पोजेबल हैज टू बी बेटर मैकेनाइज्ड, वाटर बॉटल्स अपनी यूज करना, समथिंग एज स्मॉल एंड एज इम्पोर्टेंट एज दैट। आपने बताया कि पानी, रिवर्स को कैसे हमें क्लीन रखना चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्ट कैसे, there should not be a cultural shock. रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एनवायरमेंटल टूरिज्म पे हम कैसे फोकस रखें। और आपने जो बैलगाड़ी टूरिज्म की बात की, तो मैं जरूर चाहूंगी कि एज इंडिया सिटी वॉक्स फेस्टिवल हम इसमें जरूर कंट्रीब्यूट करें, हम आए और आपके साथ मिलकर एक सस्टेनेबल टूरिज्म की शुरुआत करें थ्रू द बैलगाड़ी टूरिज्म। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने शिव की बात की, हम अक्रॉस द नेशन मानते हैं अपने भगवान को। 33 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस अक्रॉस, और शायद उनसे ज्यादा ही हो, बट हमें चाहिए कि जिस तरह हम भगवान की पूजा करें, उसी तरह इस प्रकृति की, दिस एंटायर एनवायरमेंट एंड द रिच हेरिटेज, द रिच कल्चर जो हमारे पास है, हम उसका प्रॉपर यूज करके एक सस्टेनेबल वे में उसका यूज करें, सो दैट इन द लॉन्ग रन हमारे बच्चे और उनके बच्चे को उसकी खूबसूरती का भी अनुभव रहे। और ये ऐसा ना हो कि हमारे साथ सब कुछ और इस पृथ्वी को हम ऐसा छोड़ें कि कोई यहाँ पे रहना ना चाहे। तो डेफिनेटली आपकी हर बात
एक बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए। हम कोशिश पूरी करेंगे कि जिस तरह आपने सस्टेनेबल टूरिज्म को इतने सिंपल वर्ड्स में हमें समझाया है, उसको हम कैसे लेकर एज यंगस्टर्स, एज इंडिविजुअल्स, एज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसे कैसे हम लेकर चल सके। और जहां तक हमारी कोशिश रहेगी, मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं आपके घर आई थी और मैंने आपके साथ खाना खाया और आपने सोलर कुकर में बना खाना हमें पेश किया, हमें हमारे साथ खाया, इट वॉज सच अ वार्म, इट वॉज सच अ मेमोरेबल इवेंट फॉर मी। मतलब मेरे लिए वो पहली बार था कि मैंने सोलर कुकर का खाना खाया और वो इतना लाजवाब था। सो एक मेमोरी क्रिएट, और उसी के माध्यम से आप सोचें, आप देखें, आपने वो इतना खूबसूरत आइडिया बताया कि अगर आप टूरिज्म कर रहे हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अपना नेचुरल फूड लीजिए, खुद पकाइए, खुद खाइए, उसका अनुभव लीजिए, लोकल फूड में इंडल्ज कीजिए, जहां पे जा रहे हैं वहीं के लोगों का खाना खाइए, अपना खाना मत लेकर जाइए, ताकि चीजें वहीं की यूज हो। एंड वही उसी में खूबसूरती है। आज आपने हमारे साथ जो टाइम स्पेंड किया मैम, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सबका जिन्होंने आज हमारे को ज्वाइन किया। एंड एक बार बधाई फिर से आपको on the birthday. I think you are the sole partner, and equally you deserve the congratulations and happy birthday to you as well. Thank you very much for joining us today. Very grateful to everyone. If anybody has a question, please you can ask. Ma'am, I have a quick question. Just one tiny little question that has always come to my mind. Janak ma'am, you have done so much. आपने इतना काम किया है, इतने sections में काम किए हैं. कोई ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा है जिसको ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा हो, स्पेशली विद द वुमेन? आई थिंक उनकी लाइव्स को आपने इतने बखूबी टच किया, यू चेंज देयर लाइव्स. ऐसा कोई एक्सपीरियंस मैम जिसको लगा हो कि हमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? ऐसा है, पहली बार जिंदगी में मेरे को 1 साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। 1964 से 65 ओपन हार्ट सर्जरी करवाने में, और मुझे रोज ऐसा ही लगता था कि बस आज का दिन है, और मैंने ओवरकम नहीं किया। मुझे ईश्वर ने, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ प्रयास किया है, लेकिन मुझे ईश्वर में विश्वास है, और मैं मेरे अंदर स्वीकार करने की जो एक हर बात को। उसके बाद कैंसर की 4 सर्जरीज हुई, कीमो में मैं वो चली गई थी, कोमा में चली गई थी। उसके बाद अभी एक एक्सीडेंट जिसमें आई लॉस्ट माय हस्बैंड सडनली, एक्सीडेंट से मैं बची। उसके बाद अभी कोविड भी सडनली, मैंने 1 साल भर अपने आप को बचा के रखा, पर कब कभी कहाँ कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मुझे हुआ, मैंने टेस्ट अपना वॉलंटियरली करवाया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अब मुझे मेरी माँ की शिक्षा है कि सोल्यूशन पे काम कर, बस। तो मैंने आदिवासी लड़कियों के साथ काम किया, वो उनको विश्वास नहीं होता था, 10 साल लगे, जब उनको पूरा विश्वास हुआ, जब हमें बार बार जाना नहीं पड़ा, फिर हमने उनके पेरेंट्स को जोड़ा, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के उसके ऊपर काम करते थे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन हमारे पास ये चॉइस है कि हमें जीना कैसा है। तो जब हम लाइफ को जीने के तरीके ढूंढते हैं, तो सब कुछ ईश्वर को भी मानते हैं, खुद भी प्रयासरत रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, और सबका सहयोग लेते हैं, सबके साथ सद्भावना से रहते हैं, तो सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं, और वो मिलकर अपना अपना काम करती हैं। प्रार्थना करना, दुआ करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प मिली मुझे इन सारे बहाई फेथ की अंदर। मेरी जो आस्था है, उसी का आधार है ये सद्भावना और ये सस्टेनेबिलिटी सारी। तो मुझे लगता है कि आस्था, प्रेम। थैंक यू मैम। नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हमारा जनरेशन अलग है और हमारे से जो यंगस्टर्स हैं वो और भी अलग है।
और हम अगर solution पे focus करें, जैसे आपने बोला, instead of the challenges that we face, if we are concentrating on the solution, I think many lives will be saved and many more things will be achieved. Thank you, ma'am. That answers my question. Thank you so much. Thank you once again, everybody. I'd like to thank Janak Palta ma'am. I'd like to thank Ministry of Tourism, UNWTO, for the opportunity of doing this session today under the banner of India City Walks Festival. Thank you, everybody, for joining us. We're signing off. Have a good evening. Bye-bye.